Dear students, welcome once again in the chapter function. Last time we did types of function where we had so many types of function, their graph, their domain and range. Now today we will learn how to find domain and range of an unknown function. For example, right now you know the domain and range of some specific function. We can say some standard function. So now if any unknown function is given to us, then what to do to get domain and range? Today we will study that part. Before that, I am just going to summarize functions which we studied last time. So we will draw a table having domain and range of standard function which we studied last time. So I am going to make the table. मेरे साथ आप भी बनाएंगे. Name of function, its domain and range. So we are going to make table having 3 columns. Fine. So the first function I am taking mod of x. What was the domain? All the real number, range, square bracket 0 to infinite. Signum function, domain, all the real number, range, set of -1, 0 and 1. Greatest integer function, domain, set of real number, range, set of integers. Fractional part function, domain, all the real number, range, square bracket 0 to 1. Is it? Logarithmic function, domain, r plus range r. Exponential function, domain, r, range r plus. Square function, domain, r, range 0 to infinite. Cube function, domain, r, range r. Okay students, then reciprocal function, domain, r minus 0, range is also r minus 0. Okay. Then after it we had trigonometric function, inverse trigonometric function. So now I will write domain and range of trigonometric function, inverse trigonometric function. So in trigonometric function, first we have sine of x, domain, all the real numbers, range, square bracket -1 to 1. Then cos x, domain, all the real numbers, range -1 to 1. Tan of x, domain, r minus 2n plus 1 pi by 2, range is r. Cot of x, domain, r minus n pi, range is r. Sec of x, domain,
r minus 2n plus 1 pi by 2 range r minus open interval minus 1 to 1 cosec x domain r minus n pi range r minus open interval minus 1 to 1 sin inverse x domain square bracket minus 1 to 1 range square bracket minus pi by 2 to plus pi by 2 cos inverse x domain minus 1 to 1 range square bracket 0 to pi tan inverse x domain r range open interval minus pi by 2 to plus pi by 2 cot inverse x domain r range open interval 0 to pi sec inverse x domain r minus open interval minus 1 to 1 range square bracket 0 to pi excluding pi by 2 cosec inverse x domain r minus open interval minus 1 to 1 range square bracket minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. Fine. So students, in this way we have domain and range of all trigonometric function, inverse trigonometric function at a single place. Benefit of making this table: domain and range of all standard function now you have at one place. So whenever you have to learn, you have to recall domain and range of standard function, just go through this table. इसी टेबल की हेल्प से हम लोग अननोन फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे उस पर काम करेंगे. फाइन. तो ये टेबल आपको अच्छे से रटा होना चाहिए. इट विल ऑलवेज हेल्प यू. ओके. सो नाउ आई एम मूविंग टू प्रोसीजर to find domain and range of functions which are not standard, not known to us. So I am putting the heading how to find domain. How to find domain of a function. So clearly we are talking about functions which domains are not known to us. Right now we know the domain and range of functions which are known to us. We do not know domain of all function. There can be infinite many functions. So it is not possible to remember domain and range of all. So there must be some method using which we can find domain and range of any given function. So first of all I am taking how to find domain of a function. Before it I am writing the definition of domain. Domain क्या होता था? Domain of a function is set of all those values of x for which function is defined or exist. Okay. The student, function is defined or exist.
as we know very well, domain is values of x. Which values of x? Values of x for which function is defined or exists. Now question arises, when can we call a function defined? So I'm writing a function is called defined. A function is called defined if denominator not equal to 0. This point must be clear to you. Whenever denominator becomes 0, we say expression is not defined. So function is a formula. Function is a formula. Now in that formula, denominator must never be 0. We are looking for domain. So very first requirement, domain denominator should not be 0. Number 2, expression inside even square root greater than or equal to 0. स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इवन स्क्वायर रूट, एक्सप्रेशन इनसाइड इवन स्क्वायर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन स्क्वायर रूट? All of us know square root means what power? Power 1 by 2. Now even square root, power 1 by 4, power 1 by 6, power 1 by 8, power 1 by 10, power 1 by 2, all they are counted in even square root. So मैंने क्या लिखा? Expression inside even square root greater than equal to 0. स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनीथिंग इनसाइड स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव. स्क्वायर रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. ओनली देन स्क्वायर रूट इज डिफाइंड. तो सेम चीज है हियर. उसी स्क्वायर रूट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के क्या कर दिया? इवन स्क्वायर रूट. कि पावर 1 by 4 है, पावर 1 by 6 है, 1 by 10 है, तो ये पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Am I talking about 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7? No. मैं कह रहा हूं कि अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए. कब होना चाहिए? When we have power 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8. I'm not taking the name of 1 by 3, 1 by 5. So remember, if there is cube root, power 1 by 3. If there is fifth root, power 1 by 5, then we have no problem. पावर 1 by 3 के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा. पावर 1 by 5 के अंदर का एक्सप्रेशन कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा. बट इफ देयर इज इवन स्क्वायर रूट विच मीन्स पावर 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 एंड सो ऑन, देन द एक्सप्रेशन इनसाइड देम मस्ट बी पॉजिटिव. मैं एक एग्जांपल भी लिख रहा हूं. आई हैव f of x is equal to x minus 3 raised to the power 1 by 4, and I have f of x is equal to x minus 3 raised to the power 1 by 3. ठीक है? सो यहाँ ये मैं ये बोलूँगा, here x minus 3 must be greater than or equal to 0. और यहां मैं ये बोलूंगा, here x minus 3 is equal to real. तो स्टूडेंट दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए. If there is power 1 by 4 which is called even square root, then expression inside must be greater than or equal to 0. नेगेटिव नहीं ले सकते. बट इफ देयर इज पावर 1 by 3 तो अंदर वाला एक्सप्रेशन रियल होना चाहिए. रियल में पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है. तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो आई विल से x इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.
But what will I say from here? X belonging to R. Fine. तो अगर मेरे से ये पूछा जाए, in this function, what values of x can be taken? I will say only and only greater than or equal to 3. But अगर मेरे से यहाँ पूछा जाए, तो I will say any real value of x is acceptable here. In this problem, only and only greater than or equal to 3. But in this problem, any real value of x is acceptable. So if there is even a square root, only then we have to work, and what we have to do? Expression inside greater than or equal to 0. But if there is power 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, nothing to do. Every value of x is acceptable, provided that is real. Is it? Now, number 3. हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन निकालने की, एंड टू गेट डोमेन it is necessary that function is defined, and for a function to be defined, denominator should not be 0, expression inside even square root greater than or equal to 0. Now third one I am writing, and this point is very very important. ध्यान से समझिएगा. In case of g of hx, चलिए स्टूडेंट पढ़िए. मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इन केस ऑफ g ऑफ hx. अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा. इट इज सिंपली, मैंने एक ऐसे एक्सप्रेशन की बात करी है जहां बाहर भी एक फंक्शन, बाहर भी एक एक्सप्रेशन है, अंदर भी एक एक्सप्रेशन है. g और h को आप थोड़ी देर के लिए फंक्शन मान लीजिए. बाहर एक फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन है. If we are getting such kind of situation, where we have one function inside and one function outside, then inside must belong to domain of outside. So these 3 points you have to keep in your mind to get domain of any unknown function. Denominator should not be 0. Expression inside even square root greater than or equal to 0, and in case of combination of inner and outer, inner must belong to domain of outer. I will do the problems so you will get the things more clearly. Fine. हमसे बोला गया फाइंड डोमेन. So the first problem I am taking, f of x is equal to x minus 3 divided by 2x minus 1. This is my function. I am looking for domain here. टू फाइंड डोमेन हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है फंक्शन को नॉट डिफाइन होने से बचाना, और फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो, इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू? डिनोमिनेटर नॉट 0, एक्सप्रेशन इनसाइड इवन स्क्वायर रूट पॉजिटिव. इन केस ऑफ g of hx बिलोंग टू डोमेन ऑफ g. नाउ डू वी हैव डिनोमिनेटर हियर? यस. Do we have any square root here? No. Do we have combination of inner outer? Nothing. तो यहाँ पे केवल और केवल प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर को लेके. So I will write
2x minus 1 not equal to 0, x not equal to half. So my answer for domain is x belonging all the real excepting half. I can also write it as minus infinite to infinite excluding half. Okay students, ये presentation सबको clear है कि belonging to R means minus infinite to infinity, but we do not have to take 1 by 2. Now problem number 2, f of x is equal to root over x minus 3 upon 2x minus 1. Fine. Same problem, just I have put square root. Same problem है, मैंने क्या कर दिया, केवल उस पे square root लगा दिया. Once again we have to find domain. So what will we do? X minus 3 upon 2x minus 1 greater than or equal to 0. और आपको लिखना है तो आप ये भी लिख लीजिए and 2x minus 1 not equal to 0. We have denominator as well as square root. तो हम दोनों की बात करेंगे. Because of square root expression greater than equal to 0, अंदर वाला expression, and because of denominator 2x minus 1 not equal to 0. Now we will solve it. बताइए. Now how to solve it? क्लास 11th में सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं वेवी कर्व मेथड. Whenever there is sign of greater or less, we apply wavy curve method. Cross multiplication is not valid. If anyone is doing cross multiplication कि 2x minus 1 को राइट में ट्रांसफर कर दें 0 हो जाएगा, गलत है, नहीं करते हैं. Whenever there is sign of greater or less, we go for wavy curve method. Wavy curve method की डिमांड होती है लीनियर फैक्टर, which we have. Linear factor either in multiplication or in division. Sign of greater, sign of less, we apply wavy curve method. Greater or less का साइन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, we go with wavy curve method. When is it applied? It is applied whenever we have linear factor either in division or in multiplication. Method क्या होता था? Horizontal line. On this line we put the values of x for which factors are 0 and we put the values in increasing order. As per wavy curve method, horizontal line, on the line we put the values for which factors are 0. ऊपर वाले को 0 करके 3 मिलेगा, नीचे वाले को 0 करके 1/2. Now we follow a sign convention. After the last number always plus, before that alternate minus plus. फिर से ध्यान देना, मैंने क्या बताया? मैंने बताया आफ्टर द लास्ट नंबर ऑलवेज प्लस, आखिरी नंबर के बाद हमेशा ही प्लस लेते हैं, उसके पहले अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो माइनस एंड हियर प्लस. नाउ चेक द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ग्रेटर और लेस को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी. व्हाट साइन वी हैव? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव. वेयर वी हैव पॉजिटिव? हियर. सो x belonging minus infinite to 1/2 and 3 to infinite. बोलो, ये समझ में आ रहा? Now, whenever there is sign of equal to 0, sign of equal, with greater or less we have sign of equal, we take square bracket in the answer, but infinity minus infinity they can never have a square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि आपने पर्टिकुलर नंबर को लिया है. इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी कैन नेवर बी टेकन. तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, तो आंसर लिखने में मैंने इन्फिनिटी पे क्या लिया है? राउंड ब्रैकेट.
और आंसर कहाँ तक लेना है, आंसर लेना है माइनस इन्फिनिटी से हाफ, देन 3 टू इन्फिनिटी। तो मैंने 3 पे भी स्क्वायर लगा दिया, हाफ पे भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में मैंने यूनियन रख दिया। यूनियन क्यों रखा, क्योंकि मुझे दोनों आंसर को लेना है। बट अब रुक जाना, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, देयर मे बी सम एरर। नाउ बिकॉज ऑफ इक्वल साइन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, बट स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से आंसर में हाफ शामिल हो गया, और जबकि x इक्वल टू हाफ रखने पे, x की जगह हाफ रखने पे डिनोमिनेटर 0, पूरी चीज नॉट डिफाइंड। सो मैं स्क्वायर ब्रैकेट को अलग कर रहा हूं और वापस राउंड लेके आ रहा हूं, किस पे, हाफ के ऊपर। स्टूडेंट कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए। मैंने आपको ये बताया कि अगर इक्वल का साइन होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिया जाता। तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने 3 और हाफ दोनों पे स्क्वायर लिया था, क्यों लिया था, बिकॉज ऑफ इक्वल साइन। लेकिन फिर मैंने एक चीज पे ध्यान दिया, हाफ पे स्क्वायर ब्रैकेट होने का मतलब था कि हाफ आंसर में आ रहा है, बट x की जगह हाफ रखने पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो इसलिए हाफ नहीं ले सकते। तो मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट हाफ पे अप्लाई किया था उसको मैंने रिमूव करके राउंड ब्रैकेट कर दिया। नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर। बोलिए, दिस इज माय फाइनल आंसर। इस वाली कंडीशन से क्या आ रहा था, इस वाली कंडीशन से आ रहा था x नॉट इक्वल टू हाफ, ऑलरेडी हाफ इज नॉट इंक्लूडेड। दिस कंडीशन वाज सेइंग कि हाफ मत लेना, ऑलरेडी वी आर नॉट टेकिंग हाफ, हाफ पे राउंड है मतलब हमने हाफ नहीं लिया है। सो दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equal to 1 upon root over mod x minus x. Now, what are we getting in this problem? Denominator as well as square root. Square root क्या कहता है, अंदर वाली चीज ग्रेटर और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर क्या कहता है, इक्वल टू 0 मत लेना। तो मेरी कैलकुलेशन में ध्यान देना, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट मैंने लिखा ग्रेटर और इक्वल टू 0। वैन एवर वी हैव स्क्वायर रूट, व्हाट वी से, स्क्वायर रूट के जो अंदर रखा हुआ है शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। बट इन द सेम प्रॉब्लम वी हैव डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज नेवर टेकन 0। तो ध्यान देना, मैं इक्वल टू 0 में से इक्वल हटा रहा हूं, बात समझ आ रही। बिकॉज ऑफ अंडर रूट ग्रेटर इक्वल, but because of denominator equal to 0 is not allowed. So only and only mod x greater than x. Now this you have to decide कि वो कौन से x होंगे for which mod x greater than x। आप मॉडुलस फंक्शन में जाइए, मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन बताया था, प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, वहां पे ये चीज मैंने आपको बताई है कि mod x greater than x, किसी नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा कब होगा, whenever that number is negative। r माइनस का मतलब नेगेटिव, we can also write minus infinite to 0। mod of a number greater than that number is possible only when that number is negative। So our answer is minus infinite to 0। Number 4, f of x is equal to log of x minus mod x। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिएगा। नाउ इट्स अ गुड प्रॉब्लम। डू वी हैव एनी डिनोमिनेटर हियर? नो। डू वी हैव एनी स्क्वायर रूट हियर? नो। फाइन। Now how to get the domain? Come to point number 3। मैंने आपको जो डोमेन में बताया था, a function is called define if point number 1 denominator not 0, point number 2 expression inside even square root greater than equal to 0, और मैंने एक तीसरा आपको लिखवाया था क्या, point number 3। क्या लिखवाया था point number 3?
if we have outer function, inner function, then inner must belong to domain of outer. Now that concept will be followed here. अंदर कौन है, मतलब ये log है, log के अंदर कौन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर. डू वी नो द डोमेन ऑफ लॉग? टेबल देखो, टेबल जो टेबल मैंने बनवाई है, टेबल में देखो लॉग की डोमेन क्या होती है, लॉग की डोमेन होती है आर प्लस. तब मेरी इस वर्किंग पे ध्यान देना, मैं लिखने जा रहा हूं हियर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर बिलोंगिंग आर प्लस. इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से पूछे. देखिए मैंने यहां पे डोमेन का पॉइंट नंबर 3 अप्लाई किया है कि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है. उसमें पॉइंट नंबर 3 था व्हाट, अंदर वाली चीज बाहर वाले की डोमेन को बिलोंग करे. बाहर कौन है, लॉग. लॉग का डोमेन क्या होता है, आर प्लस. तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मस्ट बिलोंग टू आर प्लस. नाउ आर प्लस का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव. सो मे आई से x minus greatest integer greater than 0? Tell me. If I am saying something belonging to r plus का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव. और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0. देन x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर. इन अदर वर्ड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x. Now we have to decide values of x. Our answer will be those values of x for which greatest integer will be less than that number. सोचिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी. और ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन बताते समय मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उस नंबर से लेस और इक्वल होता है. थोड़ा सा मैं यहाँ साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा. किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उस नंबर से लेस और इक्वल होता है. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x. व्हाट वी नीड हियर, वी नीड ओनली लेस. एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, स्क्वायर ब्रैकेट x इज लेस देन और इक्वल टू x. वी नीड ओनली लेस. तो आपको अगर ये रटना हो तो रट लीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल टू x एंड स्क्वायर ब्रैकेट x लेस देन x इक्वल टू x व्हेन x इज बिलोंगिंग टू इंटीजर. एज अ डेफिनेशन, स्क्वायर ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल टू x, इक्वल स्पेसिफिकली व्हेन x इज इंटीजर. तो सिंपल सी बात है, लेस कब होगा, व्हेन x इज नॉट इंटीजर. सो यहां पे मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, x नॉट बिलोंग टू इंटीजर. Final answer, all the real number excepting integer. Answer is r minus i. r minus i का meaning all the real numbers excepting integer. फिर से आइए. From the theory part, square bracket of a number is always less than or equal to that number. Equal when number is integer. Less when number is not integer. So here we are looking for square bracket x less than x. So clearly answer is what? X not belonging to integer, x belonging r minus I. Okay? So student, इस प्रॉब्लम में हम लोग ने डोमेन निकालने का पॉइंट नंबर 5 अप्लाई किया कि when there is combination of inner and outer, then inner must belong to domain of outer. इसी तरह का मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं. f of x is equal to sin inverse 2x minus 3. Now
डोमेन निकालते समय हम लोग किन किन बातों पे ध्यान देते हैं? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, देयर इज नो डिनोमिनेटर. क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट पॉजिटिव, देयर इज नो स्क्वायर रूट. फाइन. सो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे डोमेन का पॉइंट नंबर 3 आएगा. पॉइंट नंबर 3 क्या था? समथिंग इज आउटसाइड एंड समथिंग इज इनसाइड. समथिंग इज आउटसाइड, समथिंग इज इनसाइड. इनसाइड मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ आउटसाइड. बाहर कौन रखा है? साइन इनवर्स. डू वी नो द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? यस. टेबल में जाइए, जो टेबल मैंने आपको बनवाई है उस टेबल में देखिए कि साइन इनवर्स का डोमेन वहां लिखा हुआ है. So I am writing here 2x minus 3 belong to square bracket minus 1 to 1. ये कहाँ से आया? हमारा लॉजिक कहता है कि अंदर वाला बाहर वाले की डोमेन को बिलोंग करे. बाहर कौन है? साइन इनवर्स. टेबल में जाके देखिए व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1 to 1. सो 2x minus 3 बिलोंग टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1 to 1. स्टूडेंट आप इसके आगे बताइएगा. मैंने कहा कि 2x minus 3 इसको बिलोंग करे. 2x minus 3 इसको बिलोंग करे. बिलोंग का मतलब क्या? इसके अंदर होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग 2x minus 3 in between 1 and minus 1. बताइए, आर यू गेटिंग इट? ये इसको बिलोंग करे यानी इसके अंदर होना चाहिए. ये इसके अंदर होना चाहिए. इट मीन्स 2x minus 3 इन बिटवीन माइनस 1 and 1. हमें निकालना क्या? डोमेन. डोमेन मतलब कौन सी वैल्यूज? x की वैल्यूज. सो अब मैं इसको सॉल्व करके x निकालने जा रहा हूं. मैंने सब जगह 3 ऐड कर दिया. आई एम गेटिंग 2x इन बिटवीन 2 and 4 डिवाइडिंग बाई 2, x in between 1 and 2. So my final answer, x belonging square bracket 1 to 2. X belonging square bracket 1 to 2. Getting it? So this is our answer, x belonging square bracket 1 to 2. Any doubt? Next. Now my problem number 6, f of x is equal to log of x cube minus x to the base 10 plus 1 upon root over 4 minus x square. Fine. तो स्टूडेंट अब मैंने प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा अप किया है एंड वी मस्ट बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. देयर इज नथिंग, दे कैन बी डन इजली. नाउ दिस इज माई होल फंक्शन. फाइन. आई हैव टू फाइंड डोमेन. डोमेन का मीनिंग क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. तो आई हैव टू डिफाइन दिस होल एक्सप्रेशन. अगर मैं बोलूं प्रॉब्लम हैज 2 पीसेस, ये पहला पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया. इफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोथ आर सेपरेटली डिफाइंड, द होल फंक्शन विल बी डिफाइंड. एम आई सेइंग राइट? लॉग अगर डिफाइन हो जाए, दूसरा वाला टर्म अंडर रूट ये डिफाइन हो जाए, तो पूरा का पूरा फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा. सो हियर इन दिस प्रॉब्लम टू फाइंड डोमेन वी विल राइट द कंडीशंस to define first and second term separately such that whole function is defined. पहले मैं आ रहा हूं सेकेंड वाले टर्म पे. Now tell me, for this term to be defined, what is necessary? बताइए. Getting it? I have to find domain. For domain, first and second term both must be defined. Second term has square root in denominator. Whenever there is a square root, expression inside must be greater
equal 0. Because of denominator equal 0 can't be taken. So only 4 minus x square greater than 0. Now, इस पे आइए. To define this term, what to say? Outer, inner. Outer, inner. Inner कौन है? x क्यूब माइनस एक्स. आउटर कौन है? log. log का डोमेन क्या होता है? r प्लस. r प्लस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0. सो मैंने लिखा x क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. बताइए. I have written the mathematical conditions under which first and second term will be defined, and when first and second both are defined, our whole function will be defined. इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे मेरे से. Here I have written the condition because of square root and denominator. Here I have written the condition considering inner and outer. Inner must belong to domain of outer. Outer is log. log का डोमेन r plus का मतलब पॉजिटिव. So inner must belong to r plus means greater than 0. इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ x मिलेंगे, यहाँ से कुछ x मिलेंगे, बट आवर पर्पज इज टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन. बताइए, केवल ये एग्री हो जाए, ये ना हो चलेगा? नहीं, दोनों कंडीशन को एग्री करना जरूरी है. सो व्हाट विल वी डू? यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, देन उनमें से जो कॉमन वैल्यूज होंगी दे विल बी द फाइनल आंसर. क्या वर्ड मैंने यूज किया? कॉमन. x will come from here, x will come from here, their common will be our final answer. मैं आपको बताऊंगा how to get that. पहले मैं इस पे आ रहा हूं. x minus 1, x plus 1 greater than 0. Student, is it okay? It can be factorized into 3 factors. Now, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था whenever sign of greater and less linear factors, what we apply? Wavy curve method. Method क्या होता है? Horizontal line. On the line, put the numbers for which factors are 0 and number must be in increasing order. Horizontal line, on the line put the number for which factors are 0, number must be in increasing order. आखिरी नंबर के बाद क्या लेते हैं? प्लस, उसके पहले माइनस, उसके पहले प्लस, उसके पहले माइनस. बताइए, is it? Our sign is greater than 0, which means plus. So x belonging minus 1 to 0 union 1 to infinite. बताइए. For first term to be defined, this is the required condition. After solving the condition, we are getting x minus 1 to 0 union 1 to infinite. Is this okay? Now, we will solve second one. आइए. Now student, आप में से कई लोग जो गलती करते हैं उसको समझिएगा. 4 greater than x square, 2 greater than plus minus x. ये गलत है, कभी मत करना. In case of inequality, never go for direct square roots. दोनों तरफ स्क्वायर रूट इतनी जल्दी नहीं किया जाता कि मैंने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, देन मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया. इट इज नॉट अलाउड. देन व्हाट इज अलाउड? वेवी कर्व मेथड. व्हाट इज अलाउड? वेवी कर्व मेथड. वी हैव साइन ऑफ ग्रेटर. हाउ टू सॉल्व इट? वेवी कर्व मेथड. बट टू गो विद वेवी कर्व मेथड क्या रिक्वायर्ड होता है? फैक्टर. कैसे फैक्टर? लीनियर फैक्टर. सो 2 minus x, 2 plus x greater than 0. Should I apply Wavy curve method? No, अभी नहीं. Wavy curve method के लिए we need linear factor and factor must have positive x. x वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. जिनको नहीं याद है लिख लीजिए. For Wavy curve method, linear factor and factor must have positive x. For example here 2 minus x, x वाली टर्म क्या जा रही है? निगेटिव जा रही है.
तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 2, एंड व्हाट विल हैपन टू 0, 0 विल रिमेन 0. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if we are multiplying with minus sign, sign of greater will become less. greater और less को क्या बोलते हैं, inequality, and sign of inequality reverse whenever we multiply with the minus sign. I am writing x minus 2 x plus 2. now tell me 2 माइनस एक्स से x माइनस 2 कैसे बना, माइनस से मल्टीप्लाई किया. क्यों किया, क्योंकि वेवी का मेथड तभी अप्लाई होता है व्हेन द टर्म ऑफ x इज पॉजिटिव, x वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. तो आई हैव मल्टीप्लाइड विद माइनस, दैट्स व्हाई 2 माइनस एक्स इज x माइनस 2. बट बिकॉज ऑफ दैट मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर बिकम लेस एंड 0 इज स्टिल 0. स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिए. ऑल ऑफ सडन ग्रेटर का साइन लेस हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है. माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एक्स वाली टर्म नेगेटिव नहीं लेते, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है. नाउ वेवी कर्व मेथड. सो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द लाइन -2 + 2, देन प्लस माइनस प्लस. We have to go with which sign, less than 0, that is negative. So x is -2 to 2. Okay. Our problem has first term, second term. First we have written mathematical condition to define both the term. Then solving the condition, values of x for the first term, values of x for the second term. But final answer is not received yet. फाइनल आंसर अभी भी आना बाकी है. फाइनल आंसर अभी भी आना बाकी है. एंड टू गेट दैट फाइनल आंसर, नाउ वी विल टेक कॉमन. हम लोग कॉमन लेंगे. और कॉमन किसका लेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफाइन किया, x की वैल्यूज मिली. सेकेंड टर्म को डिफाइन किया, x की वैल्यूज मिली. नाउ वी विल टेक देयर कॉमन. इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सब लोग अच्छे से समझिएगा. व्हाट वी डू टू टेक कॉमन, वंस अगेन वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. whenever we have to take common, once again we draw horizontal line, but this time we plot the solution. क्या मैंने बोला, this time we plot solution. ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है. हम दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे. कैसे करेंगे सीखिए. -1 to 0, let -1 is here, so 0 will be here and 1 will be here. My solution is saying -1 to 0. So putting a line between -1 and 0 will cover -1 to 0. 1 to infinity. So a line after 1 is covering 1 to infinite. Okay. Now second solution is -2 to 2. -1 को ऑलरेडी मैं रख चुका हूं, तो -2 कहाँ आएगा, नेचुरल सी बात है, -1 के पहले जाएगा और 2 1 के बाद जाएगा. इट इज सेइंग -2 to 2. व्हाट डज इट मीन, -2 से लेकर 2 तक. तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी -2 से लेकर 2 तक. नाउ अब ये बात ध्यान रखिएगा कि एक सॉल्यूशन मैंने नोइंगली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्लॉट किया और एक सॉल्यूशन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे प्लॉट किया, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश देम. कि एक सॉल्यूशन मैंने ऊपर लिया और एक सॉल्यूशन मैंने नीचे लिया है, जिससे कि कॉमन लेने में आसानी रहे. तो आपको रटना है तो आप रट लीजिए. whenever we have to take common, we draw horizontal line and we plot solution obtained. एक सॉल्यूशन ऊपर बनाया, एक सॉल्यूशन नीचे बनाया. मान लीजिए 3 सॉल्यूशन आते तो क्या करते, 2 ऊपर बनाते, 1 नीचे बनाते. सेकंड थिंग, मैंने एरो का सहारा लिया है, मैंने एरो बनाया है. क्यों बनाया वो भी समझ लीजिए. लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाते समय मैंने आपको एरो और डॉट की कहानी सुनाई थी
कि डायग्राम बनाते समय हम एरो लेते हैं कब, व्हेन पर्टिकुलर नंबर इज नॉट टू बी टेकन, और डॉट लेते हैं कब, जब नंबर लेना होता है. आई हैव राउंड ब्रैकेट एवरीवेयर, शुड आई हैव टू टेक 0, शुड आई हैव टू टेक 1? नो, क्योंकि 1 0 -1 सब पे राउंड ब्रैकेट है, मुझे उन नंबर को नहीं लेना है. तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एरो का सहारा लिया है. अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता, लेट से 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट होता, क्या बोला मैंने, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट होता मतलब 0 को लेना, तो मैं डायग्राम बनाते समय डॉट लेता. एवरीवेयर आई हैव राउंड ब्रैकेट मीन्स पर्टिकुलर नंबर्स को नहीं लेना है, दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग एरो. नाउ कॉमन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोर्शन इन विच first and second both solution are coming, that is our common part. For example, do I have both the solution in the region -1 to 0? Yes. Do I have both the solution in the region 1 to 2? बताइए, -1 to 0 में भी दोनों solution आ रहे हैं, 1 to 2 में भी दोनों solution आ रहे हैं. So what about final answer? Our final answer is x belonging -1 to 0 union 1 to 2. Is it? So this is my final solution, -1 to 0 union 1 to 2. बताइए, is there any doubt? -1 to 0 union 1 to 2. Okay? So मैंने एक ऐसा प्रॉब्लम कवर किया where we have addition of two function, first addition of two term, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों को अलग अलग डिफाइन किया, उनके लिए मैथमेटिकल कंडीशन बनाई, उनको सॉल्व किया, एंड फाइनली दिस इज अवर. सो स्टूडेंट्स, होपिंग यू आर एंजॉइंग. कुछ और प्रॉब्लम्स को अच्छे प्रॉब्लम्स को लेते हैं. नंबर 7, f of x is equal to root over log of 5x minus x square by 4 to the base 10. Fine. So now student, you must be able to do this problem. चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे. What we have here, do we have denominator? No. Denominator से मतलब होता है x वाली टर्म denominator में. No. Do we have under root? Yes. So I am going to write log over 5x minus x square by 4 greater than or equal to 0. Is it? This I have written. One more thing we should write. कोई बताएगा मुझे क्या? देखो, here in this problem we have square root as well as we have combination of inner and outer also. log मेरा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके अंदर कुछ रखा है, अंदर वाली चीज बाहर वाले की डोमेन को बिलोंग करे. log की डोमेन होती है r प्लस, बोले तो पॉजिटिव. So that's the reason 5x minus x square by 4 greater than 0. ये समझ में आ रहा कि to define this function these two conditions are necessary. ये वाला कंडीशन आया because of under root और ये वाला कंडीशन आया because of log. This condition I have written because of square root. This condition I have written because of log. अंदर वाली चीज बाहर के डोमेन को बिलोंग करे. log की डोमेन r प्लस पॉजिटिव, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. या रट लीजिए, whenever there is anything inside the log that must be positive. log के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए. नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले मैं इस पे आता हूं. नाउ इज इट ओके टू एवरीवन कि ये तभी सॉल्व होगा जब लॉग हटेगा? विदाउट रिमूविंग लॉग इट कांट बी सॉल्व. लॉग को हटाए बिना इसको सॉल्व नहीं कर सकते. एंड नाउ डू यू नो हाउ टू रिमूव लॉग स्टूडेंट्स? चलिए पहले मैं आपको राइट हैंड साइड में हाउ वी डील विद लॉग वो बताता हूं, देन वी विल कम बैक टू द प्रॉब्लम. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log. log b to the base a is equal to c implies that b is equal to a raised to the power c. First I am talking when there is only equal sign. How to remember it? Whenever log is removed, base of log become base of other side.
इफ अगर मैं आपसे बोलूं a को c का बेस बना दो तो आप क्या लिखोगे, a टू द पावर c लिखोगे। व्हेन अवर log इज रिमूव्ड बेस बिकम बेस ऑफ अदर साइड। मैंने a को c का बेस बना दिया तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर c, दैट आई हैव रिटन। इशू बनता है व्हेन देयर इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल हियर log of b to the base a greater than c. Now what should I write? Yes, b a to the power c. That logic is still valid कि whenever we have to remove log, base of log become base of other side. But since there is sign of inequality, so now two things can happen. Same sign of inequality may continue, sign of inequality may reverse. Everything will depend upon base. देखिए मैं क्या लिखा, b greater than a to the power c और b less than a to the power c. स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे काम आने वाली है। मैंने क्या बोला, इफ देयर इज ओनली एंड ओनली इक्वल one result, but if there is sign of inequality, two things can happen. Same sign of inequality may continue, sign of inequality may reverse. Depend करेगा बेस कैसा, if a greater than 1, if a less than 1. आप ऐसे याद रखिए। You want to remove log? Yes, it is possible. Sign of equal, sign of inequality, everywhere log can be removed. How? Whenever we remove log, base of log become base of other side. Base of log become base of other side. So log हटा तो क्या बन गया, a to the power c बन गया। If there is only equal sign, directly log removal is allowed. But if there is sign of inequality, then after removing log, it will matter whether same sign of inequality continue or sign of inequality reverse. Log का base 1 से बड़ा है, same sign of inequality continue. Log का base 1 से छोटा है, sign of inequality reverse. Are you getting it? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, मतलब यहाँ मैंने ग्रेटर लिया है, किसी को लग रहा है कि अगर लेस होता तो कंफ्यूज मत होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर हो लेस हो अल्टीमेटली है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ना। फिर से दो रिजल्ट, b लेस देन a टू द पावर c, b ग्रेटर देन a टू द पावर c. वी हैव टू रिमूव बेस ऑफ लॉग, we have to remove log, it can be removed, base become base of other side. Now same sign of inequality continue, sign reverse. Same sign of inequality continue when base greater than 1, sign of inequality reverse when base less than 1. Getting it? Log we have to remove when there is equal sign, when there is sign of inequality. Is it? नोट किया आपने ये? तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग डोमेन का प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें मैथमेटिकल कंडीशन में लॉग आ गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए लॉग को रिमूव करना होगा। दैट्स द रीजन हमने इस पार्ट को समझाया। ठीक है, अब मैं इसको यहां से अलग कर रहा हूं एंड वी आर कमिंग बैक टू अवर प्रॉब्लम। सो आई हैव टू रिमूव लॉग फ्रॉम हियर। Yes, it is possible. On the other side, I will get 10 to the power 0. That's okay. Log remove होता है तो base of log दूसरी तरफ का base बन जाता है. That means 10 की power 0. Now, log का base कैसा है? 1 से बड़ा है कि छोटा? 1 से बड़ा है.
तो सेम साइन विल कंटिन्यू. इट मीन्स 5x minus x square by 4 greater than or equal to 1. आया समझ में कि अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने केवल लॉग हटाया है. हमारी प्रॉब्लम थी रूट ओवर लॉग. सो वी हैव रिटन टू मैथमेटिकल कंडीशन, वन बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ लॉग. दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, दोनों से x मिलेंगे, फिर उनका क्या लेंगे, कॉमन. बट स्टूडेंट यहां पे मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूं, तो जरा समझिएगा. एक तरीका है क्या, इसको पूरा सॉल्व करते जाएं, x की वैल्यूज आ जाएगी, इसको पूरा सॉल्व करते जाएं, x की वैल्यूज आ जाएगी, देन एट द लास्ट दोनों का कॉमन ले लेंगे. बट टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, अब आप देखिए व्हाट वी हैव हियर, सेम थिंग ग्रेटर देन 0, एंड व्हाट वी हैव हियर, सेम थिंग ग्रेटर देन 1. तो इसको पूरा सॉल्व करना, देन आगे जाके कॉमन लेना, वो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी है. बोलते हैं व्हेन वी हैव सेम एक्सप्रेशन इन बोथ, यहां पे भी वही चीज है जो यहां पे है, केवल ये ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 1 है. तो जो कॉमन वाली बात है उसको अगर अभी कर लिया जाए, इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करने से बच जाएंगे. अल्टीमेटली आखिरी में हमें कॉमन लेना ही है, वो कॉमन क्यों ना अभी ले लिया जाए. सेम थिंग ग्रेटर देन 0, सेम थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1. बताइए, दोनों का कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. एंड इन प्लेस ऑफ सॉल्विंग बोथ ऑफ देम, नाउ वी हैव टू सॉल्व वन एंड ओनली वन कंडीशन. तो बताइए ये ज्यादा इजी होगा ना, कैलकुलेशन बचेगा, टाइम बचेगा. सो 5x minus x square greater than equal to 4, x square minus 5x plus 4 less than or equal to 0. अच्छा, अब यहाँ पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो कि आपने कहा कि अब मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, यहाँ मैंने कैसे कर लिया. माय डियर, 4 इज व्हाट, 4 is a positive number. 4 is a positive number. With a positive number, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड. इससे पहले जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको मना किया था, वहां पे डिनोमिनेटर हमारा x के टर्म में था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, कंफर्म नहीं था, इसलिए नहीं किया था. बट हियर इट इज कंफर्मली पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड. फिर मैं उठा के सबको इधर ले गया, तो आई हैव दिस वन. नाउ फैक्टर्स x minus 1, x minus 4, वेविकप मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 and 4, प्लस माइनस प्लस, लेस का साइन है, किसके साथ जाएंगे, नेगेटिव, एंड वेयर वी हैव नेगेटिव इन बिटवीन 1 and 4. सो आवर आंसर x belonging 1 to 4. Our answer x belonging square bracket 1 to 4. Is it? So स्पेशल मैंने यहाँ पे क्या किया, in spite of, in place of solving both the conditions separately, मैंने पहले ही दोनों का कॉमन ले लिया, एंड इट वॉज पॉसिबल बिकॉज सेम थिंग ग्रेटर देन 0, सेम थिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो कॉमन लेना पॉसिबल था, और दोनों का कॉमन क्या आया, 5x minus x square by 4 greater than equal to 1. So now we have to solve one and only one mathematical condition. At the last answer x belonging square bracket 1 to 4. Is it? One more problem I am taking, number 8. F of x is equal to cos inverse 2 minus mod x by 4 plus 1 upon ln 3 minus x.
Student, you must be known to the symbol ln log, natural log. ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में लॉग के समय बताया था कि ln का मतलब नेचुरल लॉग, लॉग जिसका बेस e होता है. So we have function having first term, second term. To find domain we will have to define both of them. एक एक करके बात करते हैं. For this one, what should I write? 2 minus mod x by 4 in between 1 and minus 1. यहां पे इनर और आउटर वाला फंडा आ गया. अंदर वाली चीज बाहर वाले के डोमेन को बिलोंग करे. कॉज इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 to 1. तो ये -1 to 1 को बिलोंग करे, यानी -1 to 1 के बीच में होना चाहिए. This one. I have log. लॉग के जो अंदर होता है मस्ट बी पॉजिटिव एज वेल एज नॉट इक्वल टू 1. इस पे ध्यान दीजिए. आप सबको ये क्लिक कर जाता है बट ये नहीं क्लिक करता. ये मैंने क्यों लिया? नाउ इन दिस टर्म I have two things. I have log as well as denominator. Because of log, I have written 3 minus x greater than 0. मेरी ड्यूटी है डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना. डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब log हम 1 पे लेंगे. log 1 की वैल्यू जीरो होती है. log 1 की वैल्यू जीरो होती है तो डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना है. That's the reason 3 minus x not equal to 1. So overall we have these three conditions. एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. सो -6, ठीक है. 2 को हटाने के लिए मैंने सब जगह -2 कर दिया. नाउ इट इज 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी के साइन बदल गए, पलट गए, रिवर्स हो गए. नाउ कम टू दिस पार्ट. इन दोनों से मुझे मिलेगा x लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 2. ओके. 3 को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो इट इज गिविंग मी x लेस देन 3 और यहां से x नॉट इक्वल टू 2. ये वाली कंडीशन अभी भी बची सॉल्व करना. तो मैं इधर आ रहा हूं. 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 2. इसको एक्सप्लोर करते हैं. इट हैज मीनिंग mod x in between -2 and 6. नाउ बताइए, mod x के बारे में सबको नोन होता है. mod x क्या होता है? mod x इज पॉजिटिव. तो -2 से बड़ा लिखना कोई सेंस नहीं है. सो दिस इज सिंपली mod x लेस देन और इक्वल टू 6. स्टूडेंट इस बात को समझिए. -2 लेस देन mod x, निगेटिव mod x से छोटा होगा. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इसको कैरी करने का कोई सेंस नहीं है. We have to solve only mod x less than equal to 6. It has meaning x in between -6 and +6. टाइप्स ऑफ फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी में मैंने ये रिजल्ट आपको लिखवाया है. mod x लेस देन सम नंबर, what will be x? And from here x less than 3 not equal to 2. For the final answer, common. Now common will decide our final answer. Horizontal line -6 to 6. ध्यान दीजिए, मैंने डॉट बनाया. डॉट क्यों बनाया? बिकॉज -6 और 6 दोनों पे इक्वल का साइन है. अब 3 कहाँ आएगा? 6 के पहले.
और 3 पे लेस का साइन है, इक्वल नहीं है, दैट्स द रीजन मैंने एरो बनाया। हाउ टू रिप्रेजेंट इट नॉट इक्वल टू 2, 2 कहाँ होगा, 3 के पहले होगा, तो मैंने लाइन को 2 पे ब्रेक कर दिया। स्टूडेंट मेरे डायग्राम को समझिएगा, वी हैव टू टेक लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 2, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 के पहले लाइन ड्रॉ करी और उस लाइन को मैंने 2 पे ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2 हमें नहीं लेना है। नाउ कैन वी डिसाइड द कॉमन पोर्शन, यस, ये देखिए ये कॉमन पोर्शन है, उसके बाद ये कॉमन पोर्शन है, तो फाइनली कॉमन पोर्शन कहां से कहां तक दिख रहा, -6 से 2 तक दिख रहा, उसके बाद 2 से 3। व्हाट अबाउट फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इट इज x बिलोंगिंग -6 to 2 यूनियन 2 to 3। बताइए, 6 to 2 और 2, स्टूडेंट देखिए -6 पे मैंने गड़बड़ करी है, समझिएगा। नाउ -6 क्या होगा, कॉमन में आएगा कि नहीं आएगा, डू वी हैव -6 इन अपर सॉल्यूशन, यस, -6 के ऊपर डॉट है यानी -6 ऊपर वाले में है, क्या -6 नीचे वाले में है, यस, तो -6 कॉमन में आएगा, देयर विल बी स्क्वायर ब्रैकेट एट -2। सिमिलरली 3 के ऊपर कंप्लीट लाइन है, 3 ऊपर वाले सॉल्यूशन में है, बट 3 के नीचे एरो है, 3 नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले सॉल्यूशन में है, नीचे वाले में नहीं है, कॉमन में आएगा नहीं आएगा, इसलिए आप देखो 3 पे क्या है, राउंड ब्रैकेट। दैट इज अवर फाइनल आंसर, स्क्वायर ब्रैकेट -6 to 2 राउंड ब्रैकेट यूनियन राउंड ब्रैकेट 2 to 3, स्क्वायर ब्रैकेट -6 to 2 यूनियन राउंड ब्रैकेट 2 to 3। फाइन, तो आई होप स्टूडेंट्स कि काफ़ी कुछ चीज़ें अब आपसे डोमेन में समझ में आ रही होंगी, बन रही होंगी। प्रॉब्लम्स का तो ढेर है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जा सकती हैं।